بابا اماں سے میں ہرگز نہ کہوں گی کہ دوا دو، میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو، میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو۔ پلکوں سے میں سایہ علی اصغر کی کروں گی، اماں کی سواری سے بہت دور رہوں گی۔ بابا بابا ہاں کہے کہ میری جست کے کچھ روز بڑھا دو، میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو، میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو۔ میں پانی پلاؤں گی سواری کو تمہاری، بہلاؤں گی رستے میں سکینہ کو تمہاری۔ بابا بابا جو کام کنیزوں کے ہے سب مجھے کو بتا دو، میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو، میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو۔ سب نظریں چراتے ہیں کوئی دم نہیں بھرتا، سچ ہے کوئی مردے سے محبت نہیں کرتا۔ بابا بابا توقیر میری یہ ہے تو مرنے کی دعا دو، میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو، میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو۔ کیا گزرے گی جب گھر سے چلے جائیں گے اکبر، کیسے مجھے ہر بات میں یاد آئیں گے اکبر۔ بابا بابا کب آئیں گے لینے مجھے بھیا یہ بتا دو، میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو، میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو۔ ہاں اپنی محبت کا میں اظہار تو کر لوں، ٹھہرو علی اصغر کو ذرا پیار میں کر لوں۔ بابا بابا ناکے سے جھلک ننھے مسافر کے دکھا دو، میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو، میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو۔ ریحان وہ بیمار یہ تھک ہار کے بولی، اے سرور ذیشان تمنا ہے یہ میری۔ بابا بابا جاتے ہو تو
تربت میری تم خود ہی بنا دو. میں یہ نہیں کہتی کہ اماری میں بٹھا دو. میں یہ نہیں کہتی کہ اماری میں بٹھا دو. بابا 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 مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو. میں یہ نہیں کہتی کہ اماری میں بٹھا دو. میں یہ نہیں کہتی کہ اماری میں بٹھا دو. صلوات محمد وعلیہ. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاع أنوار محبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية الذي فرض الله محبته ومودته على العربية والعجمية. الصلاة والسلام سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا والطبيب نفوسنا الذي اسمه في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين من يومنا هذا إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد قال سبحانه في كتاب المبين وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. سامعین گرامی، دوستداران آل محمد علیہ السلام، الحمدللہ رب العالمین. قرآن کریم کی مشہور اور معروف آیہ کریمہ، اس آیہ کریمہ میں خلاق کائنات کا ارشاد ہے: لقد کرمنا بنی آدم وحملناهم فی البر والبحر. خلاق کائنات نے اس آیہ کریمہ کے ماتحت
انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ کی بہترین مخلوق کا نام انسان ہے، انسان بہترین مخلوق کا۔ خدا یہ کہتا ہے ہم نے تمہیں خلق کیا، خشکی اور تری میں سواریاں دی، ہم نے تمہیں پاک اور پاکیزہ رزق دیا، ہم نے تم کو اپنی اکثر مخلوق پر پوری فضیلت دی جیسا کہ فضیلت دینے کا حق ہے۔ یقیناً پیدا کرنے والے نے جب ایجاد کی منزل میں قدم میں قدرت رکھا تو کسی کو بلند بنایا تو کسی کو پست، افلاک کو بلندی دی تو زمین کو پستی، رات کو ظلمت دیا تو دن کو نور، سورج میں گرمی قرار دی تو چاند میں خنکی، پتھر میں سختی دیا تو پانی میں نرمی، کسی کو انسان بنایا کسی کو حیوان بنایا۔ لیکن اللہ کی سب سے بڑی مخلوق، اللہ کی سب سے افضل مخلوق یہ انسان ہے، انسان۔ اور اس انسان میں انسان کا محور، انسان کا مرکز، انسان کا آئیڈیل، انسان کا نمونہ، جس کے نقش قدم پر ہم اور آپ چل سکتے ہیں، احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کائنات میں بہترین انسان انسانی شکل میں محمد اور آل محمد علیہ السلام۔ اللہ کو واقعی اگر پہچاننا ہے، کوئی اللہ کو پہچاننا چاہتا ہے کہ اللہ کیا ہے، تو اللہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے عبد محمد کو دیکھو، ہمارے عبد محمد کو دیکھو گے ہماری نشانیاں محمد میں تمہیں نظر آئے گی۔ محمد کے اخلاق کو دیکھو تمہیں سمجھ میں آئے گا خدا کتنا بڑا رحیم ہے۔ محمد کی سخاوت کو دیکھو تمہیں پتہ چلے گا خدا کتنا بڑا سخی ہے۔ اس بندے کو دیکھتے جاؤ، اپنے معبود کو سمجھتے جاؤ۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، اس بندے کو دیکھ تو جاؤ، اپنے معبود کو سمجھتے جاؤ۔ اللہ نے رسول خدا کو اپنا آئینہ بنایا ہے۔ آئینہ جتنا صاف ہوتا ہے، جتنا صاف ہوتا ہے، تصویر اس میں بے نقص عیب نظر آتی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ آئینے پر گرد و غبار ہے، آئینہ میلا ہے، آپ سامنے جا کر کھڑے ہو جائیں، آپ کی تصویر صاف نظر نہیں آئے گی۔ جتنا آئینہ صاف ہوگا تصویر اتنا ہی صاف ہوگی۔ اللہ نے رسول خدا کو اپنا آئینہ بنایا۔ دیکھو یہ محمد آئینہ ہے، اس کو دیکھتے جاؤ، ہمیں سمجھتے جاؤ۔ تمہارے درمیان ہمارے درمیان یہ وسیلہ ہے، لہذا رسول خدا کو اللہ نے آئینہ بنایا۔ ایسا آئینہ جس میں نور ہی نور ہے، دونوں طرف نور ہے، اس طرف بھی نور ہے، اس طرف بھی نور ہے۔ آئینے کا دو رخ ہوتا ہے، دو رخ ہوتا ہے۔ ایک رخ آئینے کا یہ یہاں نور، اور دوسرا جو ہے دوسرا رخ بھی ہے جو آئینے کا نور، نور ہی نور۔ لہذا یہ نور والا آئینہ اگر خدا اپنے بندوں کے سامنے پیش کرتا تو بندے نور والے آئینے کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ لہذا اللہ نے کیا کیا، جو نور کا رخ ہے وہ اپنی طرف رکھا۔ ہمیشہ آپ دیکھیے اگر آئینہ دونوں طرف سے صاف ہو تو نظر نہیں آئے گا۔ آئینے میں ایک طرف آئینہ ہو
दूसरी तरफ लाल पेंट कर दिया जाता है, लाल मिट्टी लगा दी जाती है ताकि एक तरफ नजर आए दूसरी तरफ से नजर ना आए। अगर दोनों तरफ नूर ही नूर होता तो अल्लाह के बंदे इस नूर को नहीं समझ पाते। अल्लाह ने इस आईने का दो रुख रखा, एक रुख पर नूर, दूसरे नूर पे मिट्टी लगा दी। मिट्टी वाला रुख हमारी तरफ कर दिया, नूर वाला रुख अपनी तरफ कर लिया। दरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मिट्टी वाला रुख जो है वो हमारी तरफ और नूर वाला रुख जो है हमारी तरफ। अब जब हमने मिट्टी वाला रुख अपनी तरफ देखा, हम ये कहने लगे ये तो हम जैसे हैं, ये तो हम जैसे हैं। हर कोई कह रहा है हम जैसे हैं। इसकी मिसाल इससे पहले भी हमने दी है। मिसाल क्या है? एक बच्चा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बांग्लादेश में पैदा हुआ, अपनी माँ के आगोश में आया। वो बच्चा बांग्लादेशी, अपनी माँ की जबान, उसने बंगाली जबान को सीखा। जाहिर है बंगाली का बच्चा है, यकीनन वो बंगाली जबान को सीखेगा। उसने बंगाली जबान, बेहतरीन जबान बंगाली जबान को सीखा। थोड़ा बड़ा हो गया, बाप ने कहा कि इसे ईरान भेजते हैं, कुम में जाके ये दीनी तालीम हासिल करेगा। कुछ अरसा वहाँ रहा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बेहतरीन पर्शियन फारसी आ गई। कुछ अरसा वहाँ रहने के बाद अब चला गया अरबिस्तान, अरब के माहौल में रहा। 2-4 साल वहाँ बेहतरीन अरबी आ गई और तरक्की किया। चला गया इंग्लैंड, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उसे इंग्लिश जबान पर उबूर हासिल हो गया और चला गया आगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हिंदी जबान, उर्दू जबान भी आ गई। एक इंसान है बंगाली भी जानता है, उर्दू भी जानता है, पंजाबी भी जानता है, फारसी भी जानता है, अरबी भी जानता है, ये सब कुछ जान रहा है। उसके बाद बहुत बड़ा बैरिस्टर बनकर ये इंग्लैंड से आया बांग्लादेश। एक बंगाली शख्स उसके पास आया, हुजूर मेरा मुकदमा है। उसने उस बंगाली को जो देखा, उसने सोचा अगर हम अपना इल्म जाहिर करें तो ये बेचारा देहाती हमारे इल्म को नहीं समझ सकेगा। बिल्कुल देहाती बन गया, गांव का बन गया, ग्राम का बन गया। उसी लहजे में, उसी की आवाज में उसने उससे गुफ्तगू किया। उसने देहाती ने कहा ये तो हम जैसा है। उर्दू वाले से बात किया, उसने कहा ये तो हम जैसा है। ईरानी से बात किया, उसने कहा ये तो हम जैसा है। अरब से बात किया, उसने कहा ये तो हम जैसा है। अंग्रेज से बात किया, उसने कहा ये तो हम जैसा है। उसने कहा मैं तुम जैसा नहीं हूँ, तुम्हारे खातिर मैंने अपने आप को तुम जैसा बना लिया है। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। मैं तुम जैसा अपने अगर इल्म को मैं बयान करता, अपनी सलाहियत को अगर मैं बयान करता तो तुम नहीं समझ पाते। लिहाजा तुमको समझाने के लिए तुम जैसा बनना पड़ा। मैं तुम जैसा नहीं हूँ, बल्कि मैंने अपने आप को तुम जैसा बनाया है। लिहाजा अल्लाह का रसूल भी हम जैसा नहीं है। हम कहें कि अल्लाह का रसूल हम जैसा है, हमें समझाने के लिए, हमें दीन देने के लिए, हमें इस्लाम पहुंचाने के लिए, हमें इस्लाम की तालीमात बताने के लिए नबी हम जैसा बन गया है। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। नबी हम जैसा नहीं है। इस एतबार से नबी का मकाम बहुत बुलंद है। अल्लाह की पहली मखलूक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरफुल मखलूकात, कायनात में इस जैसी कोई मखलूक नहीं है। अली और आले अली, कायनात में इस जैसे कोई इंसान नहीं है। अर्रहमान खलक़ल इंसान अल्लमल बयान। अर्रहमान जिसने खल्क किया इंसान को। ये इंसान कौन है? जिसको रहमान ने बनाया है। ये अहमद मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के मुर्दा। इंसान हल अता अलल इंसान ही नुम्मन दहर, ये हल अता अलल इंसान में लफ्ज इंसान जो इस्तेमाल हुआ है, ये इंसान कौन है? अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। इस एतबार से
اس اعتبار الحمدللہ رب العالمین، لہذا ان کا مقام بہت بلند ہے۔ اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا۔ کیوں اشرف المخلوقات بنایا؟ یہ انسان ابر سے زیادہ فیض رساں نہیں ہے، یہ انسان چاند سورج سے زیادہ چمکدار نہیں ہے، یہ انسان ہاتھی جیسا ڈیل ڈول والا نہیں ہے، یہ انسان بیل جیسا کھانے والا نہیں ہے، یہ انسان ہرن جیسا دوڑنے والا نہیں ہے، یہ انسان اتنا محدود طاقت والا ہے، ایک مچھر کاٹتا ہے انسان بلبلا جاتا ہے، ایک چوٹی کاٹتی ہے انسان پریشان ہو جاتا ہے، اتنا ضعیف البیان، اتنا محدود طاقت والا انسان ہے، لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ انسان اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے، اس سے بڑھ کر کوئی مخلوق نہیں ہے۔ اصل مخلوق اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ انسان معرفت خدا حاصل کرے، خدا کا بندہ بن کر رہے، خدا کی بندگی کرے۔ اس اعتبار سے لہذا محمد اور آل محمد نے جس اعتبار سے اللہ کی بندگی کی ہے، کائنات میں ایسا بندہ آپ کو اور کہیں نہیں ملے گا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر، نہیں ملے گا۔ جناب عیسیٰ کہہ رہے انی عبداللہ آتانی الکتاب جعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ایک آدمی کہہ رہا میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن ہمارے نبی نے یہ نہیں کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ خدا جس نے اپنے عبد کو بلایا مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ جناب عیسیٰ کہہ رہے میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے محمد ہمارے بندے ہیں۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر، محمد ہمارے بندے ہیں۔ یہ بندگی ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کی۔ جبھی تو میرے مولا نے کہا پالنے والے، اگر میرے سامنے سے مولا علی نے کہا لو کاشف الغطاء مردت تو یقینا، مولا نے کہا کہ اگر ہمارے سامنے یہ ساتوں آسمان کے پردے ہٹا دیے جائیں، علی کے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ یعنی علی خود اللہ کی معرفت جس اعتبار سے حاصل کرنا تھا علی حاصل کر چکے ہیں، اس میں نہ کوئی کمی ہے نہ اس میں کوئی زیادتی کا امکان ہے، زیادہ بھی نہیں ہو سکتا، کمی بھی نہیں ہے۔ مولا نے کیا فرمایا پالنے والے میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ جہنم کے خوف سے جہنم میں جاؤں گا، میں تیری عبادت اس ناطے نہیں کرتا کہ میں جنت کے لالچ سے میں جنت میں جاؤں گا، بلکہ پالنے والے میں تیری عبادت کرتا ہوں اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق عبادت ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر، تو لائق عبادت ہے۔ اس اعتبار سے بہترین عبد ہیں اللہ کے رسول احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے بہترین عبد ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہ کے بہترین بندے ہیں محمد آل محمد علیہ السلام۔ اللہ کی معرفت انسان حاصل کرے، خدا نے معرفت کے ناطے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ آپ کو پتا ہے انسان تو انسان ہے، لیکن یہ جو پتھر ہے نا، پتھر بھی اگر معرفت الہی ہو تو پتھر کا بھی بہت بڑا مقام ہے۔ آپ آئیے حجر اسود خانہ کعبہ میں کالا پتھر ہے، حجر کہتے ہیں پتھر کو، اسود کہتے ہیں کالے کو، حجر اسود کالا پتھر۔ یہ کالا پتھر کیا کالا پتھر ہے؟ جناب آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے، جناب آدم جنت میں اس پتھر پر بیٹھ کر تسبیح اور تحلیل پڑھا کرتے تھے۔ جب جناب آدم چلے پتھر رونے لگا، خطاب رب العزت ہوا اے پتھر تو کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا پالنے والے میرے سینے پر بیٹھ کر تیرا ذکر کرنے والا، تسبیح اور تحلیل پڑھنے والا اب مجھ سے جدا ہو گیا، میں تیری تسبیح اور تحلیل نہیں سن پاتا۔ اللہ نے کہا جب دیکھا اس پتھر کو کہ یہ میری تسبیح اور تحلیل کا اتنا قدرداں ہے، خدا نے اس پتھر
को खाने काबा में जगा दिया और हाजियों को हुक्म दिया, इस पत्थर को हमारी मार्फत हासिल है, देखो अगर खाने काबा में आया करो, जब तक हजर अस्वद को बोसा न दो तुम्हारा हज काबिल कबूल नहीं होता है। आज लाखों हाजी, करोड़ों हाजी खाने काबा में जाते हैं, काबे का तवाफ करते हैं, तवाफ करते करते, लेकिन जब हजर अस्वद के करीब आते हैं हाथ नहीं पहुंचता, न पहुंचे दूर से सही यूं इशारा करते हैं, हजर अस्वद को बोसा देते हैं। अगर हजर अस्वद को बोसा न दे तो उनका हज काबिल कबूल नहीं है। ये एक पत्थर, कौन पत्थर? जिसका नाम हजर अस्वद है। एक और पत्थर है खाने काबा में जिसका नाम मकाम इब्राहिम है। ये मकाम इब्राहिम कौन सा पत्थर है? जनाब इब्राहिम खाने काबा की तामीर को बुलंद कर रहे थे, दीवार ऊंची हो गई, जरूरत इस बात की थी कि जनाब इब्राहिम अब किसी चीज पर चढ़कर पत्थर बनाए। जनाब इब्राहिम इस्माइल की मदद से एक पत्थर लेकर आए और पत्थर लाने के बाद जनाब इब्राहिम ने जैसे ही पत्थर पे कदम रखा, पत्थर ने कहा बारे इलाहा, जिंदगी भर पत्थर बनाए रखना, मैं पत्थर हूं, पत्थर ही रहूंगा, लेकिन इस वक्त तेरे खलील ने अपने पैर को मेरे सीने पर रखा है, पालने वाले हमें मोम बना दे ताकि तेरे खलील के पाए नक्शे मुबारक को अपने सीने पर ले लूं। अल्लाह को इस पत्थर की खलील नवाजी बहुत भली मालूम हुई। अल्लाह ने इस पत्थर की दुआ को कबूल किया, पत्थर नर्म हो गया, जनाब इब्राहिम के पैर का नक्श इस पत्थर पे जम गया। अल्लाह ने इस पत्थर को भी खाने काबा में जगा दिया और हाजियों को हुक्म दिया, देखो जब हज करने आया करो तो मकाम इब्राहिम पे 2 रकात नमाज पढ़ा करो। आज अगर कोई हाजी खाने काबा में जाता है लेकिन मकाम इब्राहिम पर नमाज नहीं पढ़ता तो उसका हज काबिल कबूल नहीं है। मैं मुसलमानों से फकत इतनी सी बात कहना चाहता हूँ, ये पत्थर है, पत्थर पर नबी का कदम है, पत्थर पे नबी का कदम है, तो नबी का कदम जिस पत्थर के शाने पर है अल्लाह ने उसे तो मकाम इब्राहिम बनाकर काबा में जगह दिया है। उस शख्स को कहाँ जगह देनी चाहिए जिसके कदम नबी के कांधे पर है? जरूर भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। उस शख्स को कहाँ जगह देनी चाहिए जिसके कदम नबी के शाने पर है, मोहरे नबुवत को दबाए हुए है। यकीनन उसे खाने काबा का वारिस और मालिक होना चाहिए, यकीनन उसे काबे में पैदा होना चाहिए। इस एतबार से सुन चुके हैं आप, नबी ने मक्के से मदीने की तरफ हिजरत किया। ये जो नबी ने मदीने से मक्के की तरफ हिजरत किया, बाद मुसलमान ये कहते हैं कि मक्का जो है वो दारुल कुफ्र था, मक्के में काफिर ही काफिर थे, और मदीना जो है वो दारुल अमन था, अमन और अमान की जगह थी। इस नाते नबी मक्के को छोड़कर मदीने में चले गए जहां अमन और अमान था। मैं कहता हूं ऐसा नहीं कि नबी सोच रहे थे मक्के में हमारे लिए खौफ है, हमारी जान बच जाए लिहाजा हम मदीने में चले जाए, वहां अमन और अमान है, ऐसी बात नहीं। नबी ने ये देखा कि मक्का दारुल कुफ्र है, नबी वहां से हिजरत किया। क्यों हिजरत किया? ताकि मदीने को दारुल ईमान बना डालूं। जरूर भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। मदीना खौफ के नाते नहीं, खौफ के नाते नहीं कि यहाँ खौफ है वहाँ अमन है, खौफ की जगह से निकलकर अमन की जगह पर जा रहे हैं। नहीं, एक जगह काफिर ही काफिर है, एक जगह नबी जा रहे हैं दारुल ईमान बन जाए, दारुल अमन बन जाए। इस एतबार से नबी मक्के से मदीने में गए और मक्के से मदीने में जाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वाक़यात आप जानते हैं। तमाम मदीने वालों को तो नबी ने एक दूसरे से मुंसलिक किया।
हर एक का भाई बना, हर एक का भाई बना। तलहा को जुबैर का भाई बनाया, जुबैर को तलहा का भाई बनाया, फला सहाबी का भाई बना, फला का भाई बना, सबके भाई बन गए। लेकिन तारीख ये बताती है जा अली तदमा ऐनहु, अली इब्न अबी तालिब रसूल के पास आए और आके कहा अल्लाह के रसूल आपने सबको सबका भाई बना दिया, लेकिन मेरा भाई कोई नहीं। अली के आंखों में आंसू था। नबी ने अली के हाथ को पकड़ा और कहा कि ऐ अली, मैंने जमीन से लेकर आसमान तक निगाह की है, तेरा जोड़ा कोई नहीं। ऐ अली, या अली अंत अखी फिर दुनिया वल आखिरा, तू दुनिया और आखिरत में मेरा भाई है। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तो दुनिया और आखिरत में मेरा भाई है। नबी ने इस तरीक़े से अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना भाई करार दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रफ्ता रफ्ता मदीना अल्हम्दुलिल्लाह माहौल बहुत अच्छा, मदीना पुरनूर हो गया, नूरानी हो गया, सबके सब मुसलमान हो गए। और फिर दोबारा फतेह मक्का भी हो गया। जब फतेह मक्का हो गया तो नबी ने क्या किया, फतेह मक्का में नबी आए, काबा है, काबे में 360 बुत है और 3 बुत जो है लात मनात हब्ल, ये 3 बड़े बुत है। 360 बुत काबे में है। नबी ने कहा क्या ले आओ काबे से बुत को पाक करे। या अली तुम मेरे कांधे पर सवार हो जाओ। अली ने कहा या अली तुम मेरे कांधे पर सवार हो जाओ। कहते हैं मौला ने कहा अल्लाह का रसूल ये बारे नबूवत है, मुझसे उठाया न जाएगा। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबी ने कहा अली तुम मेरे कांधे पर सवार हो जाओ। अली नबी के कांधे पर सवार हुए। सवार होने के बाद काबे में जो बुत है ना, ये बुत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तोड़ रहे हैं। नबी ने कहा ए अली तुम्हारा हाथ पहुंच रहा है। अली ने कहा अल्लाह के रसूल इतनी बुलंदी महसूस कर रहा हूँ, इतनी बुलंदी महसूस कर रहा हूँ, अगर चाहूँ तो आसमान से सितारे तोड़ डालूं, अगर चाहूँ तो काबे कौसैन छू डालूं। अली इब्न अबी तालिब ने बुतों को तोड़ा। तोड़ने के बाद ऊपर से अली कूद गए। कूद कर अली हंस रहे हैं। नबी ने हंसने की वजह पूछी, या अली क्यों हंस रहे हो? कहा कि अल्लाह के रसूल हंस इसलिए रहा हूँ, इतनी बुलंदी से कूदने के बावजूद भी मुझे चोट नहीं लगी। नबी मुस्कुराए, ऐ अली चोट कैसे लगती जबकि उठाने वाला मोहम्मद हो और उतार लेने वाला जिब्रील हो। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। उठाने वाला मोहम्मद हो, उतार लेने वाला जिब्रील हो। इस एतबार से अली इब्न अबी तालिब अगर नबी का कदम अगर पत्थर पे है तो अल्लाह ने मकाम इब्राहिम बनाया है, और जिस अली का कदम नबी के शाने पर है खुदा उसे क्या बताएगा। दिन की मजलिस में या दिन नमाज जुमा के खुतबे में पढ़ चुका हूँ। आज 27 रजब यौम बेसत का दिन था, 27 रजब शबे मेराज का दिन था। आज के दिन में और दूसरे दिन में बहुत ज्यादा फर्क है। 27 रजब शबे मेराज मैं पढ़ चुका हूँ। अल्लाह का रसूल जब बुराक पर सवार होकर जाने लगा तो अब्दुल कादिर जिलानी कहते बड़े पीर अब्दुल कादिर जिलानी रसूल बुराक पर सवार होंगे। अब्दुल कादिर जिलानी आ गए और कहा कि अल्लाह के रसूल आप मेरे कांधे पर अपना कदम रखे। अल्लाह के रसूल ने अब्दुल कादिर जिलानी के कांधे पर कदम रखा और रखने के बाद अल्लाह का रसूल जो है सवार हुआ बुराक पर। कहते कदम रसूल की बरकत थी, अल्लाह ने उन्हें पीराने पीर बना दिया है, अल्लाह ने उसे दस्तगीर बना दिया है। वो तमाम पीरों का पीर है। मैं कहता हूँ नबी जिसके कांधे पर कदम रख दे वो तो पीराने पीर बन जाए, और नबी जिसको अपने कांधे पर सवार कर ले दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। या अली या अली या अली मदद।
लिहाजा इस एतबार से अहले बैत का मकाम अलग है, अली और आले अली का मकाम अलग है, सहाबे कराम का मकाम अलग है। सहाबे कराम वो भी रिज़वानुल्लाह अजमईन है, खुदा उन पर रहमत नाजिल करे, लेकिन सहाबी सहाबी है, अहले बैत है, खाक खाक है, नूर नूर है। इस एतबार से इनका मकाम बहुत बुलंद है। एक बात मैं बताता हूँ, मुसलमानों ने बताया है, वो क्या है? अल मुस्लिमो मन सलमन नास मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जिसके जबान से, जिसके हाथ से किसी इंसान को तकलीफ ना हो। तवज्जो चाह रहा हूँ, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जो किसी इंसान को अजियत पहुंचाए, जो किसी इंसान को तकलीफ पहुंचाए। मुसलमान वो है जो किसी इंसान को अजियत ना पहुंचाए, जो किसी इंसान को तकलीफ ना पहुंचाए, वो मुसलमान है। यानी पहली मंजिल पर है इंसान बनना। हम और आप इंसान हो, हम और आप आदमी हो। कुरान ने कहा है ना, कल अनाम बलहुमुल अजल। देखने में शक्ल सूरत है, लेकिन शक्ल सूरत है इंसान वाली, लेकिन कुरान कहता कल अनाम बलहुमुल अजल, ये तो जानवर है, बल्कि जानवर से भी ये गिरा हुआ है। कुरान शक्ल सूरत इंसान की है। कुरान कहता मसलहुम का मसलिल हिमार, ये देखने में इंसान है, लेकिन ये तो गधे की मानिंद है। कुरान कह रहा है मसलहुम का मसलिल कल्ब, ये तो कल्ब है, ये कुत्ते के मानिंद है। देखने में इंसान है, लेकिन असल इंसान नहीं है। उसने इंसानियत को खत्म कर दिया है, उसने इंसानियत को बिगाड़ दिया है, उसने इंसानियत को खत्म कर दिया है। लिहाजा देखने में इंसान है, लेकिन असल इंसान नहीं है। सुन चुके हैं आप, हज के मौके पर अरफात का मैदान है, बहुत सारे लोग हैं, हाजी भरे हुए हैं। हमारे छठे इमाम ने कहा मा अक्सरुल हजीज, मौला हाजी बहुत ज्यादा है। मौला ने कहा हाजी नहीं है, मेरे दो उंगलियों के दरमियान देखो, पूरा अरफात का मैदान चिड़िया खाना नजर आ रहा था। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। से शक्ल सूरत में इंसान इंसान वाकई अल्लाह ने हमें जैसे बनाकर भेजा है, हम अपने आप को वैसे ही रखें। अल्हम्दुलिल्लाह नूरन अला नूर है। बारहा आप सुनते हैं, जब बच्चा छोटा मासूम होता है, ये बच्चा हंसता है, ये बच्चा मुस्कुराता है। मासूम से किसी ने पूछा, मौला ये छोटे बच्चे जो है ना, बहुत सारे छोटे बच्चों का आप देखेंगे, मासूम बच्चा आंखें बंद है, बच्चा मुस्कुरा रहा है, बच्चा हंस रहा है एक मर्तबा, और फिर थोड़ी देर के बाद देखिए वो बच्चा एक मर्तबा चीख के रोने लगा। मासूम इमाम से पूछा गया, मौला ये बच्चा जो मासूम है, ये छोटा है, ये बच्चा आंखें बंद है, लेकिन बच्चा मुस्कुरा रहा है, बच्चा हंस रहा है, ये मुस्कुराने और हंसने की वजह क्या है? इमाम ने क्या फरमाया? चूंकि ये बच्चा मासूम है, मासूम फरिश्ते इस बच्चे के साथ खेलते हैं। जब मासूम फरिश्ता बच्चे के साथ खेलता है तो बच्चा हंसता है, बच्चा मुस्कुराता है। इस एतबार से, और एक रवायत इमाम ने फरमाया, इमाम में मासूम उस बच्चे के साथ खेलता है, लिहाजा वो मुस्कुराता है। मौला एक बैक वो रोने क्यों लगता है, रोना शुरू कर देता है। इमाम ने फरमाया, जब इमाम में मासूम उसके आंखों से ओझल हो जाता है तो वो बच्चा रोना शुरू करता है। यानी जब हम पैदा हुए थे तो इंसान थे, ऐसे इंसान थे कि फरिश्ते हमसे खेलते थे। बड़े हो गए, ऐसा बड़े हुए, अपने आप को ऐसा बनाया कि बचपने में फरिश्ता हमसे खेलता था, अब शैतान हमसे खेल रहा है। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। शैतान खेल रहा है, अभी शैतान खेल रहा है। हम बच्चे थे, फरिश्ता खेलता था, इमाम मासूम खेलता था, अब शैतान खेल रहा है। नबी ने यही नहीं कहा, कयामत में मेरी उम्मत को 10 सूरतों में हाजिर किया जाएगा। कुछ क्या खिंजीर की शक्ल में होंगे, कुछ कुत्ते की शक्ल में होंगे, कुछ फला जानवर की शक्ल में होंगे, और कुछ पिपड़ा चूटी के शक्ल में होंगे। ये कौन लोग होंगे चूटी के शक्ल में? ये प्रौढ़ी होंगे, तकब्बुर करने वाले होंगे, अहंकारी होंगे,
होंगे, ये खुदा कयामत के दिन उनको चूटी के शक्ल में लाएगा। लिहाजा जब हम इंसान थे, इंसान रहे, बहुत बड़ी बात है। कहते मुसलमान वो होता है, मुसलमान वो होता है जो किसी इंसान को अजियत ना पहुंचाए। मुसलमान है, काफिर इंसान है, यहूदी इंसान है, ईसाई इंसान है, मजूसी इंसान है, जो कोई इंसान है अगर वाकई मुसलमान है तो किसी इंसान को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, किसी इंसान को अजियत नहीं पहुंचाएगा। कहते हैं कि 1000 अगर मुसलमान को 1000 अगर इंसान को जमा किया जाए तो एक मुसलमान बनता है। तवज्जो चाहूं, 1000 इंसान, अच्छा इंसान अगर आप जमा करें तो एक मुसलमान बनता है, और 1000 मुसलमान अगर जमा हो जाए तो एक मोमिन बनता है, और 1000 मोमिन अगर जमा हो जाए तो एक कुतुब बनता है, और 1000 अगर कुतुब जमा हो जाए तो एक गौस बनता है, और 1000 अगर गौस जमा हो जाए तो एक तबए ताबईन बनता है, और 1000 अगर तबए ताबईन जमा हो जाए तो एक सहाबी बनता है, और 1000 सहाबी अगर जमा हो जाए तो एक नबी बनता है, और 1000 अगर नबी जमा हो जाए तो एक रसूल बनता है, और 1000 अगर रसूल जमा हो जाए तो एक उलुल अज़्म बनता है, और 1000 अगर उलुल अज़्म जमा हो जाए तो एक मोहम्मद बनता है। जरूर भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। लिहाजा 1000 अगर उलुल अज़्म नबी जमा हो जाए तो एक मोहम्मद बनता है। जब मोहम्मद का मकाम आपको समझ में आ जाए तो फिर आप देखिए मोहम्मद का मकाम क्या है। सारी दुनिया ये कहती रही हम मोहम्मद जैसे हैं, हम मोहम्मद जैसे हैं, हम मोहम्मद जैसे हैं, लेकिन मोहम्मद ने कहा किसी को कि हम फलां जैसे हैं? नहीं, सारी दुनिया ये कहती रही हम मोहम्मद जैसे हैं, लेकिन मोहम्मद ये कहते रहे हम हुसैन जैसे हैं, हुसैन मुझ जैसा है। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। मोहम्मद ने कहा अलीउन मिन्नी व अना मिन्हु, अली मुझसे है, मैं अली से हूँ। अल फातिमतो बिज़्ज़तो मिन्नी, फातिमा हमारे जिगर का टुकड़ा है। अल हसनो निस्सो शबीहतिन, हमारा हसन हमारी आधी शबी है। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। हुसैन हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। अल मेहदियो मिन इत्रती अल मिन औलाद फातिमा, मेहदी मेरी इतरत से है, औलाद फातिमा से है। दुनिया के कहती है हम मोहम्मद जैसे, लेकिन मोहम्मद ने ये नहीं कहा कि हम फला जैसे। मोहम्मद ने कहा अली मुझसे है, मैं अली से हूँ, फातिमा मेरा टुकड़ा है, हसन मेरी आधी शबी है, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। ये एतबार से नबी मेराज पर गए, अल्हम्दुलिल्लाह नबी उस मकाम पर पहुंचे जहां पर कायनात का कोई फर्द नहीं पहुंच सका। अहले बैत में और उम्मती में फर्क यही है, सारी कायनात नबी के जूती के नीचे है, सारी कायनात
दुनिया नबी उस मकाम पर पहुंचा है, नबी की नालैन उस मकाम पर पहुंची है कि जिस मकाम पर कोई नहीं पहुंच सका। सारी दुनिया, सारी कायनात नबी के नालैन के नीचे है। ये नालैन कितना बाबरकत है। जब नालैन इतना बाबरकत है, जिस पैर में होगा वो पैर कितना बाबरकत है। जब पैर बाबरकत है तो वो सीना कितना बाबरकत होगा। जब सीना इतना बाबरकत है तो वो कांधा कितना बाबरकत होगा। जब कांधे की बरकत समझ में आ जाए तो रसूल अल्लाह ने ईद के दिन कांधे पर कभी हसन को सवार किया, कभी हुसैन को सवार किया। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। दरवाजा है कायनात में, कोई ऐसा घर नहीं है। इमाम जनाबे इमाम हसन हुसैन ने कहा, मादर गिरामी कल ईद का दिन है, मदीने के बच्चे लिबास पहनेंगे, हमारा लिबास कहाँ, हमारा कपड़ा कहाँ। फातिमा जहरा ने क्या कहा, बच्चों तुम्हारा कपड़ा खैयाद लेकर गया है, दर्जी लेकर गया है, वो सिलकर दर्जी वो कपड़ा लेकर आएगा। फातिमा जहरा ने कह दिया, बच्चे इत्मीनान से सो गए, माँ सिद्दीका है, माँ ताहिरा है बच्चों को बहलाने के लिए। लेकिन जब आज़ान सुबह का वक्त आया, अल्लाह ने जिब्रील को कहा, जिब्रील मेरी खातून जन्नत के दहने मुबारक से, मेरे सिद्दीका के दहने मुबारक से, मेरे खास के दहने मुबारक से ये निकल गया है। क्या हसन हुसैन सो जाओ, तुम्हारे कपड़े दर्जी के पास है, दर्जी सुबह को लेकर आएगा। जिब्रील हसन हुसैन का कपड़ा लेकर जाओ, लेकिन याद रखो जब दरवाजे फातिमा जहरा पर पहुंचना और दख्तुल बाब करना, फातिमा पूछे कौन, ये न कहना कि मैं जिब्रील अमीन हूँ, ये न कहना मैं उस्ताद मलाइका हूँ, ये न कहना मैं खाजिन वही हूँ, बल्कि क्या कहना, फातिमा पूछे कौन, कहना कि अना खैयातुल हुसैन, मैं हुसैन का दर्जी हूँ, मैं हुसैन का दर्जी हूँ। इस एतबार से जब नहनो खैयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूँ। उसी तरीके से अल्लाह के हुक्म से जिब्रील कपड़ा लेकर चला। आज़ान सुबह का वक्त था, सुबह का वक्त था, जिब्रील कपड़ा लिए दरवाजे जनाबे फातिमा जहरा की तरफ चला जा रहा है। मदीने में मुसल्ली जो है वो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जा रहे थे। देखा कि एक साइल है, एक फकीर है जो फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा के दरवाजे की तरफ जा रहा है। कहने लगे ये वक्त तो साइल का नहीं है, ये वक्त तो फकीर का नहीं है, ये तो आज़ान का वक्त है, ये तो इबादत का वक्त है, ये तो नमाज फज्र का वक्त है। साइल इस वक्त दरवाजे फातिमा जहरा पर कहाँ जा रहा है? साइल को इस वक्त दरवाजे फातिमा जहरा पर नहीं जाना चाहिए। मैं कहता हूँ मैं मस्जिद में जाने वाले नमाजियों, अगर तुम्हें सलाहियत है, तुम में गश है, तुम में हिम्मत है, तो साइल से पूछ के देखो। इस साइल को तुम कहो, क्या साइल ये वक्त तो इबादत का है, तू दरवाजे फातिमा जहरा पर कहाँ जा रहा है? बजाय इबादत करने के लिए पलट कर जिब्रील ये जवाब देगा, तुम्हारे लिए जहाँ जाना इबादत है वहाँ तुम जाओ, हमारे लिए जहाँ जाना इबादत है वहाँ हम जाए। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। लिहाजा
اعتبار سے تمہارے لیے جہاں جانا عبادت ہے وہاں تم جاؤ، ہمارے لیے جہاں جانا عبادت ہے وہاں ہم جائیں۔ تمہارے لیے عبادت مسجد میں جا کے نماز پڑھنا، ہمارے لیے عبادت دروازے فاطمہ زہرا پر آ کر انا خیاط الحسین کہنا۔ سائل آیا، فاطمہ نے پوچھا کون؟ کہا کہ انا خیاط الحسین، میں حسین کا دردی ہوں۔ جناب فاطمہ زہرا کو ایک تشت دیا، جناب فاطمہ زہرا نے تشت لے لیا۔ دو طرح کی روایت ہے، تشت میں کپڑا ہے، اوپر سے خان پوش پر سے کپڑا تشت میں کپڑا ہے، اوپر سے خان پوش چھپا ہوا ہے، اور دونوں کپڑا سفید ہے۔ ایک مرتبہ ایک روایت جناب فاطمہ زہرا نے پوچھا آفتابے میں پانی ہے، آب کوثر ہے۔ جناب فاطمہ زہرا نے پوچھا بیٹے حسن تمہیں کون سا رنگ پسند ہے؟ ماما سبز رنگ، সবুজ রং অনেক ভালো। মাদারে গ্রামি हमें सब्ज रंग पसंद है। हुसैन तुम्हें कौन सा रंग पसंद है? मादरे ग्रामी हमें सुर्ख रंग पसंद है। आफ्ताबे में पानी है, जनाब फातिमा ज़हरा उस आफ्ताबे में पानी उसमें डाला गया कपड़े में, लिहाजा एक बन गया सब्ज और एक बन गया सुर्ख। ये एक और एक नहीं, खान पोश से कपड़ा छुपा हुआ है। इमाम हसन से पूछा बेटा हसन तुम्हें कौन सा रंग पसंद है? मादरे ग्रामी हमें सब्ज रंग पसंद है। हुसैन तुम्हें कौन सा रंग पसंद है? मादरे ग्रामी हमें सुर्ख रंग पसंद है। फातिमा ये नहीं कहती ए हसन के सफेद कपड़े सब्ज बन जा, ए हुसैन के सफेद कपड़े सुर्ख बन जा, बल्कि अब जो खान पोश हटाया है एक सब्ज है एक सुर्ख है। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। एक सब्ज है एक सुर्ख है। इस एतबार से बच्चों ने लिबास पहना। बच्चे लिबास पहनने के बाद अब जब बच्चे ये नाना से कहने लगे नाना मदीने के बच्चे उनके पास सवारी है, मदीने के बच्चे उनके पास नाका है, नाना हमारा नाका कहाँ, हमारा सवारी कहाँ, हमारा जानवर कहाँ जिस पर हम सवार हो जाए। इस एतबार से अल्लाह का रसूल खुद नाका बन गया, अल्लाह का रसूल खुद ऊंट बन गया। रसूल लेट गए, हसन सवार हो जाओ, हुसैन सवार हो जाओ। हसन हुसैन दोनों सवार हो गए। रसूल खुदा की दो जुल्फ है, एक जुल्फ हसन ने पकड़ लिया, एक जुल्फ हुसैन ने पकड़ लिया। 70 मरतबा घर से मस्जिद गए हैं, मस्जिद से घर आए हैं। जब इमाम हसन हुसैन कहते नाना मस्जिद, जब मस्जिद में चले जाते हैं एक मतलब कहता नाना घर जाओ, आप ले आए घर ले आए, फिर नाना मस्जिद जाओ, फिर मस्जिद ले आए। 70 मरतबा कहा नाना घर जाएंगे, नाना मस्जिद जाएंगे, नाना घर जाएंगे। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरमियान में खड़े हैं। मौला बढ़ते बढ़ के हसन हुसैन से कहते बेटा अपने नाना को क्यों अजियत दे रहे हो, अपने नाना को क्यों तकलीफ पहुंचा रहे हो, गर्मी का जमाना है। मौला अली भी कुछ नहीं कहते। 70 मरतबा इमाम हसन हुसैन मस्जिद में ले गए, 70 मरतबा हसन हुसैन घर ले आए। अल्लाह के रसूल भी ये नहीं कहते बेटा हसन हुसैन तय कर लो कहाँ जाना है, मस्जिद जाना है तो मस्जिद चलते हैं, घर जाना है तो घर चलते हैं। जब मस्जिद पहुंचा देते हो कहते हो नाना घर जाएंगे, जब घर पहुंचा देते हो कहते हैं नाना हम मस्जिद में जाएंगे। आखिर क्या है, यानी खुदा ये बता रहा है, खुदा क्या बता रहा है, अल्लाह के रसूल अल्लाह के रसूल का चेहरा अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह के रसूल का चेहरा अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह ये बता रहा है हसन हुसैन के हाथों में रसूल अल्लाह ने जुल्फ दे दिया है। अल्लाह ये बता रहा है, रसूल ये बता रहे हैं अब अल्लाह की मर्जी हसन हुसैन के हाथ में है, जिधर चाहे उधर मोड़ दे। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। लिहाजा इस एतबार से अल्लाह की मर्जी
اب حسن حسین کے ہاتھ میں ہے، جہاں چاہے ادھر موڑ دے۔ اگر حسن سلوک کر کے اللہ کے دین کو بچا لے تو حسین کربلا میں قربانی دے کر اللہ کے دین کو بچا لے۔ خواجہ اجمیر نے یوں ہی نہیں کہا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین، سرداد ندا دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ خواجہ اجمیر معین الدین چشتی شاہ است حسین، حسین شاہ ہے، بادشاہ است حسین، حسین بادشاہ ہے، دین است حسین، حسین دین حسین ছাড়া আর কিছু না, দিন আস্ত হুসেন। আজকে যারা দিন দিন করতেছে, দিনকে দিন আস্ত হুসেন, শুধু এইটা না, দিন পানা আস্ত হুসেন, যারা দিনকে পানাহ দিয়েছে, যাকে দিনকে রক্ষা করলো, সে হলো হুসেন। দিন পানা আস্ত হুসেন। কিভাবে বলবো দিন পানা আস্ত হুসেন? আপনার উপরে আমার উপরে একজন সন্ত্রাসী, দুইজন চারজন পাঁচজন দশজন সন্ত্রাসী আমাকে মারার জন্য, আপনাকে মারার জন্য, একটা মুসলিমকে আঘাত দেওয়ার জন্য দৌড়াচ্ছে। এই যে দৌড়াচ্ছে, সে আসলো, আসার পর একটা ঘরে ঢুকতে চেল, দেখলো কে একজন, তার পিছে 70 জন 72 জন রয়েছে সন্ত্রাসী। হে কি করলো না, হেরে যদি ঢুকাই হেও মারা যাবে, আমরা মারা যাব, দরওয়াজা বন্ধ করে দিল। হে দৌড় দিয়ে আর এক জায়গায় গেল, তারা দরওয়াজা খোলা ছিল, দেখলো একজন 50 জন সন্ত্রাসী তার পিছে, সেও নিজের দরওয়াজা বন্ধ করে দিল। এইভাবে যাদের কাছে আসতেছে সে নিজের নিজের দরওয়াজা বন্ধ করে দিচ্ছে। এইভাবে ইসলাম দীপানা আস্ত হুসেন, ইসলামের পিছে দ্বীনের পিছে সন্ত্রাসীরা লাগলো এই ইসলামকে শেষ করে দিতে দেবে। ইসলাম দৌড়ে দৌড়ে একটা ঘরে যাচ্ছে, যাদের ঘরে যাচ্ছে তারা দরওয়াজা বন্ধ করে নিচ্ছে। যখন এই ইসলাম মহল্লে বনি হাশিম ইমাম হুসেনের বাসাতে গেল, হুসেন দরওয়াজা খুলে দিলেন, চলে আসো আমি বাঁচাবো। দরুদ পড়েন মুহাম্মদ ওয়া আলে মুহাম্মদ। लिहाजा इस एतबार से हुसैन ने क्या किया, इस्लाम बेपनाह, इस्लाम परेशान हाल, इस्लाम जो है बर्बाद हो रहा है, यजीदियों के हाथ में फंसकर अपने वक़ार को खोता चला जा रहा है। हलाम हराम हलाल हो गया, हलाल हराम हो गया, शरीयत मोहम्मदी पामाल हो रही है। इस्लाम को कोई बचाने वाला नहीं है। इस्लाम दर बदर की ठोकरें खा रहा है। खाते खाते एक मरतबा हुसैन के पास आया, जैसे ही आया हुसैन ने क्या देखा, एक दो नहीं 1 लाख यजीदी हैं जो इस्लाम को खत्म करने के लिए। हुसैन ने अपना दरवाजा खोल दिया, इस्लाम मैं पना देता हूँ, हुसैन शहीद हो जाएगा, लेकिन इस्लाम हुसैन तुझको बचा लेगा। हुसैन ने इस्लाम को बचाया। अरबाब अज़ा, एक खून नहीं बहुत सारे खून हुसैन ने दिए। इस्लाम अगर जरूरत पड़ी तो 32 बरस के भाई अब्बास का खून, 18 बरस के कड़ियल जवान अली अकबर का खून दूंगा, कासिम और मोहम्मद का खून दूंगा। इस्लाम अगर ज़रूरत पड़ी तो 6 माह के शीरखार अली असगर का खून दूंगा, लेकिन इस्लाम मैं तुझे बचाऊंगा। हाँ अरबाब अज़ा, वही वक्त आ गया कि जब माविया मर गया
और यजीद ने मदीने के हाकिम को यजीद ने खत लिखा। क्या लिखा कि अब मेरी बैत हुसैन से ले लो, और अगर हुसैन बैत ना करे तो हुसैन के सर को कलम करके मेरे पास भेज दो। वलीद का कासिद हुसैन के पास आया, इमाम हुसैन आने लगे वलीद के दरबार में। ज़ैनब परेशान हो गई, आका अकेले न जाइए, अब्बास को भी साथ ले लीजिए, अकबर को भी साथ ले लीजिए, कासिम को भी साथ ले लीजिए। हुसैन इस तरीके से वलीद के दरबार में पहुंचे और कहा भैया अब्बास, जब तक मेरी आवाज धीमी रहे, जब मेरी आवाज बुलंद हो जाए तो दाखिल होना। एक मर्तबा वलीद ने यजीद का खत दिया। हुसैन ने कहा रात का वक्त है, मुनासिब नहीं है, कल जब दिन हो तमाम लोगों को बुलाना, तो हमें भी बुला लेना, जैसा होगा वैसे किया जाएगा। वलीद राजी हो गया, लेकिन मरवान कह बैठा ये फातिमा का लाल है, अगर हाथ से निकल गया तो फिर आना नसीब ना होगा। बेहतर है कि हुसैन को उसी वक्त या बैत ले लो या सर को कलम कर दो। भी ये कहना था, हुसैन की आवाज बुलंद हुई, ऐ मरवान तेरी मजाल कि तो हुसैन को कत्ल करे। अरबाब आज़ाद कमरे बनी हाशिम की तलवार चमकती हुई दिखाई दी। हुसैन ने कहा भैया बात सब्र से काम लो। चाहने वाली बहन दरवाजे पर खड़ी थी, बहुत परेशान हाल। जब हुसैन आए गले से लगा लिया, भैया क्या बना? हुसैन ने कहा बहन अब मदीने में रहना मुमकिन नहीं है। अल्लाह के रसूल ने मक्के से मदीना हिजरत किया, लेकिन हुसैन बरअक्स हुसैन मदीने से मक्का हिजरत कर रहे हैं। जहां हुसैन पढ़े, जहां हुसैन पढ़े हुए, जहां हुसैन पैदा हुए, उस मदीने में हुसैन नहीं रह सकते। अरबाब आज़ाद नहीं, ज़ैनब रहना मुनासिब नहीं है, यहाँ से चल पड़े। सामान सफर तैयार होने लगा। अरबाब आज़ाद सामान सफर तैयार हो रहा है और अब्दुल्ला नामी एक शख्स है, वो ये कहता मैं उसी दिन मदीने में वारिद हुआ, देखा सुनसान है मदीने में, हर तरफ जो है वीरानी है। ये कैसी वीरानी है? का पता है नबी का लाल हुसैन मदीने से रुखसत हो रहा है। अरबाब आज़ाद हुसैन आए नाना की कब्र पर, आपके कब्र से लपट के कहने लगे नाना नाना आपकी उम्मत जो है अब मदीने में रहने नहीं देती। नाना मैं रुखसत होने के लिए आया हूँ। कभी माजर गरामी के कब्र से जुदा हुए, कभी भाई के कब्र से जुदा हुए। अरबाब आज़ाद सामान सफर तैयार हो रहा है। अब्दुल्ला ये कहता एक शख्स है, अब्दुल्ला ये कहता मैं जैसे वारिद हुआ मदीने में, देखा अजब माहौल है मदीने का, मदीना वीरान है। क्या देखा? हुसैन एक जगह कुर्सी पर बैठे हुए हैं, खेमे से एक मुअज्जमा निकली, सियाह लिबास पहने हुए एक नौजवान आगे बढ़ा, एक महमिल पर उस मुअज्जमा को बिठाया। मैंने पूछा ये सवार होने वाली मुअज्जमा कौन है? कहने लगी ये सवार होने वाली मुअज्जमा उम्मे फरवा है और सवार करने वाले जनाब कासिम है। दूसरी मुअज्जमा निकली, वो सवार हुई, एक और नौजवान आगे बढ़ा, कुछ बच्चे आगे बढ़े, कहा कि ये सवार होने वाला कौन है? क्या कहा ये सवार होने वाली मुअज्जमा उम्मे कुलसूम है, सवार करने वाले अब्बास और जनाब ज़ैनब के बच्चे और मोहम्मद और अली अकबर है। एक और मुअज्जमा सवार हुई, ये सवार होने वाली मुअज्जमा कौन है? का सवार होने वाली मुअज्जमा लैला है और सवार होने करने वाले अली अकबर है। और बाब आज़ाद अब्दुल्ला ये कहता है आखिर में मैंने देखा हुसैन अपनी कुर्सी से बुलंद हुए, नाके के करीब आए, एक खातून सियाह लिबास पहने हुई थी। हुसैन ने महमिल को खोला, खोलने के बाद हुसैन ने उस खातून को सवार किया। एक मरतबा मैंने तड़प के पूछा ये सवार होने वाली खातून कौन है? सवार करने वाले का ये खातून सवार होने वाली ज़ैनब है और सवार करने वाले हुसैन है। और बाब आज़ाद इस एतबार से अहले हरम सामनाके पर सवार हुए, सवार होकर अहले हरम चले। लेकिन एक बच्ची है जिसका नाम फातिमा सुगरा है। हुसैन उस बच्ची को ले जाना नहीं चाहते, बार बार वो बच्ची कहती बाबा हमें ले चलो, बाबा अगर महमिल में जगह नहीं है तो बाबा मैं पैदल चलूंगी। हुसैन ने कहा नहीं फातिमा
सुगरा तेरा जाना मुनासिब नहीं है। उस फातिमा सुगरा ने अहले हरम की एक एक औरतों से सिफारिश किया, अम्मा तुम सिफारिश करो बाबा ले जाए वरना मैं अकेले यहाँ तन्हाई में मर जाऊंगी। हर बीवी ने सिफारिश किया लेकिन हुसैन नहीं माने। का फातिमा सुगरा तुम रहो अरवा बेआज़ा। उलमाए कराम ने उसकी वजह बयान की है कि हुसैन किसी कीमत पर भी फातिमा सुगरा को ले जाने के लिए तैयार नहीं थे। उसकी वजह यह थी हुसैन की और बेटियां शक्ल शबाहत में या हुसैन से मिलती थी या मौला अली से मिलती थी, लेकिन हुसैन की एक बेटी शक्ल शबाहत में फातिमा ज़हरा से मिलती थी। फातिमा सुगरा हुसैन ने नहीं चाहा कि मेरी माँ की छवि अरे बाजार में शाम के दयार में बेमखनो चादर हो, उसके हाथ में लसन बांधा जाए, बेमखनो चादर फिराई जाए। हुसैन ने किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया। अरबाब आज़ा हुसैन ने इनकार किया। एक मर्तबा नाका चला, क्या देखा कि वो बच्ची पीछे पीछे आ रही है। अरबाब आज़ा बाबा नाके को रोक दीजिए, एक मर्तबा दिल चाहता है कि और बीवियों से मुलाकात कर लूं। हुसैन ने नाके को रोका। फातिमा सुगरा तमाम बीवियों से मिली। एक मर्तबा अली असगर को अपने आगोश में ले लिया। अली असगर हो मक्का फातिमा सुगरा के आगोश में आ गए और आने के बाद अब अली असगर नहीं जाते। फातिमा सुगरा ने कहा बाबा आप सब चले जाए, अगर मुझे नहीं ले जाना है तो न ले जाए, मेरे भैया अली असगर को रहने दे, तन्हाई में मेरा सहारा बनेगा। ज़ैनब ने कहा लेकिन अली असगर नहीं आए। रुबाब आगे बढ़ी, अली असगर नहीं आए। हर बीवी आती है गोद बढ़ाती है, अली असगर नहीं आए। अरबाब आज़ा हुसैन जानते थे। एक मर्तबा हुसैन झुके, अली असगर के कान में कुछ कहा, बच्चा हूं मक्कर हुसैन के आगोश में आ गया। एक मर्तबा फातिमा सुगरा ने कहा बाबा आपने अली असगर के कान में क्या कह दिया? अजब नहीं, हुसैन ने कहा होगा बेटा अली असगर करबला की शहादत में तुम्हारा भी नाम है, तुम्हारे बगैर शहादत नामुकम्मल रह जाएगी। नाना की उम्मत को बख्शवाना है, बेटा अली असगर चलो। अरबाब आज़ा वही हुआ जब करबला में अली असगर शहीद हो गए। हुसैन ने कब्र बनाई। अरबाब आज़ा नन्ही सी कब्र खोद के असगर को गाड़ के शबीर उठ खड़े हुए, दामन को झाड़ के इसी अरसा में एक सवार आया और सवार आने के बाद कहता है अय्युहल गरीब, तुम में गरीब कौन है? तुम में फातिमा का लाल कौन है? तुम में हुसैन कौन है? मीर अनीस ने कहा, मौला ने सर झुका के कहा मैं हुसैन हूँ। बस ये सुनने के बाद उसने कहा मौला मैं फला मकान पर मुसाफिरत में जा रहा था, ताजिर हूँ, मैंने देखा कि एक बेटी जो है, एक लड़की जो है फला मकान पर खड़ी थी, उसने ये खत दिया है। मौला ने खत लिया, खत पढ़ना शुरू किया। खत में लिखा था बाबा आपने कहा था मेरे चचा अब्बास को भेजिएगा लाने के लिए। बाबा चचा अब्बास को नहीं भेजा, भैया अली अकबर को नहीं भेजा। बाबा अब तो मेरे भैया अली असगर घुटनियों चलते होंगे, मेरी तरफ से प्यार कर लीजिएगा, अली असगर को प्यार कर लीजिएगा। हुसैन को ताबे जब्त न रही। एक मर्तबा कहा अब्बास फातिमा सुगरा को लाने न जाओगे? अली अकबर फातिमा सुगरा को लाने न जाओगे? अपने आप को कब्र अली असगर पे गिरा दिया। बेटा तेरी बहन का नाम आया है, फातिमा सुगरा तुझे बारगाह जवाब मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हम सब के गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ फरमाए। हमारे मरहुमीन को जवाहर इमाम मासूमीन में जगह अता फरमाना, उनके दर्जात को बुलंद से बुलंद कर फरमाना। पालने वाले सारी दुनिया से कोरोना वायरस का ख़ात्मा फरमा। पालने वाले हम सबको नक्शे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर चलने की तौफीक अता फरमा। पालने वाले मज़लूमीन की हिमायत फरमा।
پالنے والے ساری دنیا میں جو مسلمان مظلوم ہیں، پالنے والے فلسطین کے مسلمان، ساری دنیا کے مسلمان، پالنے والے مظلوموں پر اپنے فضل و کرم، اپنے رحمت کی بارش فرما، پالنے والے پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، پالنے والے پرچم کفر نفاق کو نیست و نابود فرما، پالنے والے پوری دنیا کے مسلمانوں میں اتحاد اور وحدت کی فضا کو قائم فرما، پالنے والے سبوں کے جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہم سب کو نقش محمد اور آل محمد علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے ہمارا ملک بنگلہ دیش، اس دیش پر، اس ملک پر اپنے فضل و کرم، اپنے رحمت کی بارش فرمانا، اس دیش کے باشندوں کو پالنے والے واسطہ محمد اور آل محمد کا دنیا اور آخرت کے شر سے انہیں محفوظ رکھنا، سبوں کے دلوں میں محمد اور آل محمد کی سچی محبت عطا فرما، خاتمہ آل محمد کی محبت میں ہو، ظہور امام زمانہ میں تاجیل فرمانا، ہم سب کو انصار امام زمانہ میں شامل فرمانا، ہم سب کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد ماتم حسین۔ حسین میں یہ نہیں کہتی کہ اماری میں بٹھا دو، میں یہ نہیں کہتی کہ اماری میں بٹھا دو، بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو، بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو، بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو، سن کر یہ سخن شاہ کے آنسو نکل آئے، سن کر یہ سخن شاہ کے آنسو نکل آئے، بیمار کے نزدیک گئے سر کو جھکائے، بیمار کے نزدیک گئے سر کو جھکائے، کیا ذوف نقاہت ہے خدا اس کو بچائے، کیا ذوف نقاہت ہے خدا اس کو بچائے، میں یہ نہیں کہتی کہ اماری میں بٹھا دو، میں یہ نہیں کہتی کہ اماری میں بٹھا دو، بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو، بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو، بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو، سواری کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو، میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو، بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو، بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو، سن کر یہ سخن شاہ کے آنسو نکل آئے، سن کر یہ سخن شاہ کے آنسو نکل آئے، بیمار کے نزدیک گئے سر کو جھکائے، بیمار کے نزدیک گئے سر کو جھکائے، کیا ذوق نقاہت ہے خدا اس کو بچائے، کیا ذوق گرمی میں بھی راحت سے گزر جائے گے بابا،
जाएगी बाबा, आएगा पसीना तब उतर जाएगी बाबा। मैं ये नहीं कहती कि हमारी में बैठा दो, मैं ये नहीं कहती कि हमारी में बैठा दो बाबा, मुझे फिजा की सवारी 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 में बैठा दो। सुन कर ये सुखन शाह के आंसू निकल आए, सुन कर ये सुखन शाह के आंसू निकल आए, बीमार के नजदीक गए सर को झुकाए, बीमार के नजदीक गए सर को झुकाए। क्या तो पे नफाहत है खुदा इसको बचाए, क्या तो पे नफाहत है खुदा इसको बचाए। जाओ तुम दो जन यहाँ कर रहे हो, हाँ यहाँ कर रहे हो। तुम्हें फातिमा सुगरा बाबा याद आई न तुम्हें फातिमा सुगरा बाबा, याद आई न तुम्हें फातिमा सुगरा करबला जाके हमें भूल गए का करबला जाके हमें भूल गए न तुम्हें फातिमा सुगरा मैं समझती हूँ कि भाई मेरा जानी शादी, मैं समझती हूँ कि भाई मेरा जानी ये आए न ले मुझे भैया बाबा, इसलिए आए न ले मुझे भैया बाबा, याद आई न तुम्हें फातिमा सुगरा बाबा। अब्बास करे मेरा घुटनियों चलता होगा, अब्बास करे मेरा घुटनियों चलता होगा, मेरी जानिब से कले जैसे लगाना बाबा, मेरी जानिब से कले जैसे लगाना बाबा, याद आई न तुम्हें फातिमा ज़हरा बाबा, करबला जाके हमें भूल गए क्या बाबा,
गए क्या चलो मैं वादा निभाने, चला मैं वादा निभाने, सलाम माँ के मज़ार, सलाम नाना के रोज़े, सलाम माँ के मज़ार, सलाम नाना के रोज़े, सलाम माँ के मज़ार। मैं तेरे दीन बचाऊंगा ऐ मेरे नाना, मैं अपना खून बहाऊंगा ऐ मेरे नाना। हुसैन जाता है मरने, सलाम माँ के मज़ार, सलाम माँ। सब मिलके जवाब दे भाई, सब मिलके। सलाम माँ के मज़ार, सलाम माँ के रोज़े, सलाम माँ के मज़ार। मेरे शरीक सफर बन कर साथ चलो अम्मा, सफर पे जाते हुए कपड़े मेरे बदल अम्मा, लिबास खुल्द सजाते बदन पे फिर एक बार, सलाम नाना के रोज़े, सलाम माँ के मज़ार, सलाम नाना के रोज़े, सलाम माँ के मज़ार। दुआ करो कोई सर पे रिदा ना हो अम्मा, नमाज शौक़ शहादत कज़ा ना हो अम्मा, नाए मेरे चमन पे सितम पे गर्द बवा, सलाम नाना के रोज़े, सलाम माँ के मज़ार, सलाम नाना के रोज़े, सलाम माँ के मज़ार। दिया जलाने को नाना तुम्हारे रोज़े पर, ज़रूर आएगी सुगरा हर एक शाम सहर, खुदा करे रहे रोशन सदा तुम्हारा मज़ार, सलाम नाना के रोज़े, सलाम माँ के मज़ार, सलाम नाना के रोज़े, सलाम माँ के मज़ार। तुम्हारे जैसा है नाना ये मेरा लाल अकबर, दुआ करो ना लगे इसको आसमान
آئے پانی تو کر سکتا وہ گلا بھی نہیں، وہ جس کے دہن سے آتی ہے دودھ کی مہکا، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار۔ میرے سکینہ کہاں ہے، حسن کے فرزند کہاں، زمین گرموں پہ چلنا اسے پسند کہاں، قدم و پھول سے نازک ہو راستے پرخار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار۔ یہی ہے خیبر و ریحان زندگی کا صرف، کبھی زیارت کربو بلا ہو یا ہی نظف، یہی فضا میں آتی ہے شاہدی کا پکار، سلام نانا کے روزے، سلام۔ کارواں 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 یثرب سے سوئے کربلا، ایک کارواں رخصت ہوا، سر پہ علم سایہ فگن، غازی کی آتی ہے صدا، پہلا سفر زینب کا ہے، سنسان کر دو راستہ، کارواں عباس میرے کارواں، کیا شان ہے کیا دبدبا، کیا لوگ ہے قرآن نما، صلی اللہ آیات کا ہے قافلہ، مشک و علم ان کا نشان، عباس میرے کارواں، کارواں پیارے ہیں یہ آل نبی سارے ہیں یہ، قرآن کے پارے ہیں یہ، کونین کے تارے ہیں یہ، زیر قدم ہے آسماں، عباس میرے کارواں، عباس میرے کارواں، عباس میرے کارواں، کوئی سبی مصطفیٰ، کوئی
حسن کا دلربا ہے کوئی یہاں سے سیدہ شبیر کا یہ قافلہ تھامے علم جو ہے جوان عباس میرے کارواں عباس میرے کارواں عباس میرے کارواں جب شام پہنچا قافلہ خود بائے زینب نے دیا سن لے یہ قوم اشقیاء ہم ہے بنا لا الہ کستی ہے دی ہم باد با عباس میرے کارواں عباس میرے کارواں عباس میرے کارواں تھا حضر میں مولا علی یہ سرور و ریحان بھی نظر کرم سے آپ کی رکھتے ہیں امید قوی نوح سے دیں گے یہ بیان عباس میرے کارواں عباس میرے کارواں حسین امام حسین حسین امام حسین حسین امام حسین حسین امام حسین